हेलो ऑल क्रोशिया लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, मैंने कितना खूबसूरत बैग बनाया है जो कि एक छोटा सा मैसेंजर बैग है और इसकी पॉकेट्स हैं, मल्टी पॉकेट्स वाला है। और ये मेरे लिए कार किट का भी काम करता है। तो आप बनाना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही इजी है। और चलिए फिर शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं। लीजिए क्रोशिया और स्टार्ट कीजिए। Hello viewers, welcome to my channel. Today I am going to show you how to make the messenger's bag um, with sling or handle to carry on shoulders and with various pockets to keep his envelopes, letters and other documents. And it's with crochet. I'll show you step by step how to make it. And now first of all I'll take white color. You can take any some dull color, not very bright because it's for messengers. I'm taking white and gray color, and I need crochet also, scissor. And now first of all we'll make a long strip of 37 or 36 inches length with simple double crochet. And after that, after making it, we'll cut into four parts: one part, two, three and four. And we have to measure like this because we'll again arrange them according to the requirement of the pockets and length of the messenger bag. First part will be 8 into 7.5 inches. Next 7.5 into 7.5 inches. It means length and width will be same. Again third part 7.5 inches into 7.5 inches, and last 13 inches into 7.5, because it will be the longest part. It will be folded for flap also, that's why it is the longest one. So I'll go on showing how to start the bag. Here I've given a rough draft of the bag. I have need this much length, and this is given this length for the whole strip. From moving here to upside we need 36 inches length. So let us see with two rows how much length we have covered. This is only 1 inch, and not exactly 1 inch, it is a little bit less than 1 inch. So two rows have given us length of only 1 inch. You can count from here also to be exact. 1 inch, near about 1, not exactly 1 inch. So we have to make two rows for 1 inch. So we need 36 inches. It means how many rows we need? 1 inch, 2 rows, 36 inch, 72 rows, 72 front and back, wrong and right, 72 rows. So 2 are completed, we need 70 more. And I have done this length already and cut the strip, so I am showing you here. Now these four parts are completed. We have to make the sling or handle for shoulder. Sling with the gray color, and because this wool is thick, so I will make it with 4 double crochet only. For that we have to make 6 chain stitches. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. First knot stitch is also a chain stitch, but we never count for the sling because it is always consumed in the joining of the bag. So it comes into the sewing part. So
These are 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now we'll turn the crochet. 4 stitches we need. So 1, 2. Leave 2 stitches. In the third, we'll make 1 double crochet. This is first double crochet. 1, 2. Third double crochet. Look, these 3 chains, first 3 chains, they will also be counted as first double crochet because it is giving rise to the belt or sling, and second is the next double crochet, third is the next double crochet, and fourth double crochet we'll make here. I have made sling with 4 double crochet. If you want more, you can make one more also, but because I want to complete the sling with 4 stitches only, so I have to revert now. 1, 2. Don't take 3 here because wool is very thick, so it will look very odd, and length of the double crochet stitch will be very higher. First, this will be first double crochet after turning. This is first. So our last row's first crochet was this. Above this 3 chains, these will make as a double crochet. First double crochet is this. Second, in the previous row, second double crochet is here, so we will make above it second double crochet. Look, previous row's first double crochet, next row's first double crochet, last row's second double crochet, and our next row's second double crochet, and third crochet will be made above third double crochet of the last row. This is third double crochet. Please keep the hand loose because wool becomes very tight. So third double crochet. Now this is the last, fourth and last of the previous row, and fourth and last of the current row also. Now it's completed. Fourth double crochet is completed. This way we have to do in every row 4 double crochet and get the length which we require for our sling bag. So I will complete the length and will come to you. Viewers, I have knitted the muffler or long strip of 36 inches length and cut into 4 pieces, 4 parts. Numbers are written here and their measurements also. But be careful, these measurements are not exactly as per inches or centimeter, they may vary. So they are approximate, measure with rough end. I made 4 these cut parts and their rough ends very smooth by folding them and making single crochet stitches 2 rounds. So they have become smooth. If there is extra thread or yarn, you can cut it. I have already cut and made them very fine. Ends are very fine. All I have made with single crochet. You can see here, it's very fine. I will cut it. This is also very smooth. So I had given you a draft or measurement here of all the parts, first, second, third, fourth. So first part is 8 into 7.5, second part is 7.5 into 7.5, third part also 7.5 into 7.5, and last and fourth point is the longest one,
This is 13 inches into 7.5 inch. Just see, have a look. Now we are going to compile it. Let us start making the white strip of 36 length and 7.5 width. 7.5 can be of it's 8 inches also and can be 7 inches also. That depends upon your hand, how you are making, very loose or tight. So let me count here how many crochet stitches we have to make for 7.5 length. See, you can count in 3 ways. First of all, you can count these holes, or we can count these knots, small knots, or we can also count these spokes, small spokes, which the double crochet stitch makes. So I'm going to count the holes. 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. And this is the lace stitch, 32. So 32 stitches we have to make. For 32 stitches we will make a chain with chain stitches, and that should be 32 plus 3 for folding, and last one for the knot. 32 plus 3, 35, because on that, above that, we have to make double crochet line. So I'm going to start. Just take white yarn, make a knot. This chain is not counted, it is a knot. So we will count from here 1, 2, 32 chains plus 3 extra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I'll make it off the camera and again come to you after completing. व्यूअर्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सिंगल क्रोशे से चेन को स्टार्ट करके मैंने लंबी पट्टी बना ली है, जैसे कि मफलर आप बनाते हैं, तो ये डबल क्रोशे से हमने किया है। हर स्टिच हमारा डबल क्रोशे का है। इसकी मेजरमेंट कैसे ली है मैं आपको बताती हूँ। पहले मैंने डायग्राम में आपको दिखा दी है। ये लंबी पट्टी मैंने डबल क्रोशे से स्टिच करके, इसकी लेंथ है 35 या 36 इंच। आप अपनी नीड के हिसाब से इसको बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, बट मैंने इसको यहाँ पर 36 इंच लिया है। अब 36 इंच के हमने बुनने के बाद इसके पीसेस कर लिए हैं 4, डिफरेंट मेजरमेंट के 4 पीसेस कर लिए, 1, 2, 3, 4। अब इनको हम सेट करेंगे अलग अलग जोड़ के, स्टिच करके, चाहे क्रोशे से करें, चाहे हम स्वेटर नीडल से करें, किसी से भी कर सकते हैं। और स्टिच करने के बाद हमारा ये मैसेंजर बैग विद पॉकेट्स रेडी हो जाएगा। और एक पॉकेट यहाँ पर लग जाएगी। ये मैं आपको जोड़ के सब दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने डबल क्रोशे से पट्टी बना ली। ये ध्यान रखना है, हर एक में आपने स्टिच डालना है और स्लिप स्टिच नहीं करना। हम लास्ट तक आ गए। अब इसको आप रिवर्स करेंगे और नेक्स्ट लाइन करेंगे, ताकि वो रॉन्ग साइड थी, ये राइट साइड है। राइट साइड में हम घूमकर यहाँ पर आ जाएंगे और इसको एंड को और स्मूथ बना देंगे। तो दिखाई नहीं देंगे। तो इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। यदि मैंने अभी सारा किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। व्यूअर्स देखिए, चारों एजेस मैंने जो काटे थे पट्टी के उसको फिक्स कर लिया है सिंगल स्टिच से। ये देखिए, सिंगल क्रोशिया 1, इसके एजेस भी फिक्स कर लिए मैंने। ये भी कटा हुआ था एजेस
2 राउंड करके कंप्लीट कर लिए और 2 राउंड इसके भी मैंने कर लिए। 2, इसका भी एजेस करने के बाद लास्ट में आ गई हूँ मैं। आपको ये हमारे पास 4 पीसेस आ गए। इनमें हमने ये हर एंड पे ग्रे जो मैंने लेस स्टिच बनाया है ना, इसको डबल क्रोशे से बनता है और इसको हम नट स्टिच भी कहते हैं। नट मीन्स देखेंगे आप तो शेप में थोड़ा सा ही हमको नट जैसा लगता है, कैश्यू कह लो या वॉलनट कह लो या पीनट कह लो। तो डबल क्रोशे लेस स्टिच है, दिस इज कॉल्ड लेस स्टिच। इसमें भी दोनों साइड हम ये वाला लेस करने वाले हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी कर दिया है, इसमें भी कर दिया है। अब मैं आपको यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने इस तरह से ये बना के थ्रेड्स और लगाए हैं। ये भी आपको बताऊंगी कैसे लगाए जाएंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ, ये हमारी राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। देखिए सबसे पहले हम एक नॉट बना के यहाँ पर ले आएंगे और नॉट हम डबल यार्न से बनाएंगे ताकि हमारा ये फिक्स रहे, लूज ना हो। डबल यार्न ले लिया और इसको मैंने टाइट कर दिया। अब एक चेन बनाएंगे, फिर इसी में से निकालेंगे। ये हो गया। अब नेक्स्ट में फिर चेन बनाएंगे, 1 चेन। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे। देखिए 1, ये वाली 1 चेन थी पहले वाली जो हमारी स्टार्टिंग थी, हमारे पास पहले से लूप था। 2, थोड़ा सा इसको लूज रखना है क्योंकि वूल हमारी काफ़ी मोटी है, कम से कम ये 8 प्लाई की वूल है। 1 2 3, बस 3 चेन्स बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। यार्न ओवर किया हुक के, और इसमें ये जो बेस है ना, यहाँ पर इनके दोनों के बीच में जो वी बना है, ये वी, इसके बीच में हम हुक पास करेंगे, यार्न को नीचे से ले आएंगे। अब बाहर लाके पहले 2 लूप्स गिराएंगे, फिर हमारे पास 2 लूप्स आ गए, फिर इसको गिरा के हम 1 चेन, हमारे पास 1 स्टिच रह गया या 1 चेन इसको कह सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमने अभी इसको 1 2 सेकेंड वाले में डालना है। हुक को पास किया, यार्न लाए और ये 2 हो गए हमारे पास, 2 स्टिच हो गए। एक पहले से था, एक अभी हमने निकाला और इसमें से हमने निकाल दिया 2 स्टिच में से 1 बच गया, 1 चेन। Viewers, we have got 4 pieces for messenger's bag made of different sizes. This is 1 piece, 2 piece, 3rd piece and 4th piece. This we have made with double crochet and lace stitch. Now we have to join them together one by one. I'll show you. I have set like this. Taken sweater needle. Now I sew it. Just showing you. I will start from here. Keep these threads inside to hide them. Now I will start with white wool.
We can also sew it with crochet and wool yarn. I've taken a needle. Next time I'll show you with crochet also. And we will sew the layers one by one, not all together, because there will be different setting as per their sizes. See, this is the lace stitch we got. I will not hide them. I will show their shape and pass the yarn from in between their base, not from top, like this. Take small stitches, not very big. Let me complete this whole all these three sides and then I'll come to you. देखिए व्यूअर्स, ये मैंने मैसेंजर बैग स्टिच करके तैयार कर लिया है। मैंने एक साइड से आपको सीविंग नीडल से दिखाया था, स्वेटर की नीडल से, और इस साइड से मैंने क्रोशे से इसको ज्वाइन किया है। यहाँ पर हमारे पास पॉकेट्स देखिए, 1 2 3 पॉकेट्स हैं। ये देखिएगा, 1 2 3। अब ये पॉकेट, यहाँ पर इस पॉकेट को मैं फ्लैप लगा के यहाँ पर एक बटन लगाऊंगी, इसको बंद कर दूंगी। और इस साइड भी थर्ड पॉकेट में यहाँ पर इसका बटन यहाँ से ऊपर से आएगा और फ्लैप इसमें नहीं लगाया जाएगा, इसको ओपन रखेंगे। उसके बाद मैंने इसकी बेल्ट या स्लिंग पकड़ने के लिए तैयार कर ली है क्रोशिया से। इसको भी स्टिच कर दूंगी, ये लेंथ इसकी काफ़ी है इसके लिए। और ये मैंने काज बटन के लिए बनाई है एक पट्टी, जो कि बटन्स यहाँ पर लग जाएंगे और इधर से यहाँ भी इसको कवर करेगी। सारे पॉकेट्स को एक साथ इसको कवर करेगा मैसेंजर बैग को। उसके बाद स्मॉल पॉकेट्स और लगाऊंगी डेकोरेशन पर्पस से, जिसमें कि पेन वगैरह वो रख सकते हैं। और एक साइड पर, पीछे की साइड पर एक और पॉकेट बनाऊंगी जिसमें वो अपना मोबाइल रख सकता है। तो चलिए दिखाती हूँ। ये जो पट्टी मैंने बनाई है डबल क्रोशे स्टिच से, इसमें एक ब्लैक कलर से मैं आउटलाइन करूँगी। थोड़ा स्टार्ट करके आपको दिखाती हूँ फिर मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, मैंने यहाँ से शुरू किया, आप कहीं से भी इसको शुरू कर सकते हैं। डबल यार्न को ले लेंगे। डबल यार्न मैंने आपको बताया था इसलिए लेती हूँ ताकि उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाए और धागा दोबारा खुलता नहीं है, उसी में वीविंग में आ जाता है, इसलिए ये इसको यहाँ से निकालेंगे और फिर यहाँ से भी निकालेंगे, ये आ गया। और अब एक और लेंगे। ये आपका लूप नहीं लेना, सिंगल क्रोशे है बस। ये एक छोड़ के भी कर सकते हैं क्योंकि ब्लैक यार्न हमारा जो है ना, ये वाला वूल थोड़ा सा मोटा है और ये पतला था। बीच में एक छोड़ सकते हैं, स्किप कर देंगे। यदि इसको हमने साथ में किया बिना गैप के तो बहुत ही जो बाउंड्री बनेगी वो बहुत ढीली बन जाएगी आउटलाइन। इस तरह से 2 के बाद एक स्किप, 2 के बाद एक स्किप, ऐसे करती रहूँगी मैं। ये देखिए 2 हो गए, इसको स्किप कर देंगे।
ये आपकी फिनिशिंग ठीक आ रही है। तो चलिए इसको सारा मैं कंप्लीट करके आपके पास दिखाती हूँ। ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसको भी सिल दूंगी, आपको दिखाऊंगी मैं इसको स्वेटर नीडल से या क्रोशिया से सिलेंगे। व्यूअर्स, look, our messenger bag is ready after stitching, and it has 3 pockets. One first pocket, flap is there, 4 button. I made a strip. Here is also a pocket, and third pocket. It's very spacious. 1, 2, and 3. Flaps are there to close them. Double strip. It will cover this side also. This is a strip to hold the courier bag on shoulders or in head. Now I am going to make more pockets, one front pocket and one at the back side, to keep things, phone etc. and pens or keys of the bike or car or scooter. So I will make one pocket here of measurement 5.5 inches and 3 inches. This is length and breadth. This side also, this will be the size. This side also I am going to make one more pocket. I will stitch it here 4.5 inches and 3 inches. I am making this pocket just now. After completing, I'll show you and stitch it here like this. So messenger bag measurement is 10 inches long and 7 inches width. I can show you. This is approximate measurement. 7 inches, 7 inches, and from here also 7 inches. We will measure from flap to below to the bottom. It is 10 inches from this side and 10 inches from this side. So this is the pocket with double crochet and straight strip I will make till I get the length of 4.5 inches. As I told you, I will attach 2 pockets on this messenger bag. So one was 4.5 inches long and the other was to be attached here on this side. This was 5.5 inches long. So I have completed 4.5 inches long with this white wool. I'll show you. This was the draft. Three inches and 4.5 inches, and I'll show you with measuring tape also. This is 4.5 and exactly 3 inches. So this pocket is complete. I will complete second pocket with same white wool like this with same double crochet and show you. And besides this, I want to make boundary of this pocket with black wool. I've got this black wool, 3-ply Oswal Parasmani wool. I will make the design, complete it, then we'll show you. Attach this black wool first. After that, I will cut the yarn, not before that. Take out with double yarn. The knot should be thick and
single crochet and weave this yarn with the black to hide it very neatly. This knot is fixed. Again, one more single crochet and cut the white wool. Go on making the boundary with same wool, black, and keep these both pieces of yarn inside the knitting. Single crochet, no loop, take it within this. Yes. मैंने बाउंड्री भी बना ली है और स्टिच मैंने इसलिए थोड़ा रफ दिया है ताकि मैसेंजर्स बैग है ये पोस्टमैन का, तो थोड़ी ऐसी लुक देने के लिए प्रोफेशन से मैचिंग। नाउ इसको स्टिच करना है, मैंने क्रोशे से स्टिच करूंगी, लेकिन सेंटर लेकर मैंने इसका, देखिए ये सेंटर लेकर पिन अप कर देंगे। इसको सिलना कैसे है क्रोशिया करके मैं आपको दिखा देती हूँ। नीचे से एक स्टिच को हुक में लेना है और ऊपर से ही ब्लैक यार्न को आप पुल कर लेंगे। ये देखिए हमारा लूप यहाँ पर फिनिश हुआ, एक चेन हमारे पास रह गई है। अब नीचे से एक लूप लेकर ब्लैक लूप को बाहर लाएंगे और इस चेन में से हमने निकाल दिया। ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ आया, इसको इस चेन में से निकाला और सेफ्टी से ऊपर ले लिया। फिर दोबारा व्यूअर्स देखिए मैसेंजर बैग का एक पॉकेट मैंने स्टिच कर लिया है, इसको मैंने क्रोशे स्टिच करा है और इसके बाद दूसरा पॉकेट जो मैंने कहा था पॉकेट 2 बनाएंगे, जो कि यहाँ पर इस साइड लगेगा। इसको अब मैं निट करती हूँ वाइट वूल से और क्रोशिया से आपको स्टार्ट करके दिखाती हूँ। वन, टू, थ्री, फोर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20। हमको यहाँ पर 17 या 18 स्टिचेस बनाने हैं डबल क्रोशिया, इसलिए 20 चेन की मैंने ये स्ट्रिंग बना ली है जिसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यदि 17 या 18 बनने के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा भी बच जाता है तो हम उसको छोड़ देंगे, दोबारा से उधेड़ कर नहीं बनाएंगे क्योंकि वो पॉकेट की स्टिचिंग में आ जाएगा, हाइड हो जाएगा। ये डबल क्रोशिया मैंने स्टार्ट कर दिया है। एक प्लाई यदि रह भी जाती है तो कोई बात नहीं, उसको नीटिंग में आप ले लीजिए, बार बार उसको उधेड़ने के लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो 3 इस तरह से डबल क्रोशिया करके हम 18 जिसकी चेन कवर कर लेंगे और इसके ऊपर लेंथ बनाते जाएंगे जैसे कि हमने इसको बनाया था। इस पॉकेट की तरह इतनी लंबाई का हम पॉकेट बना लेंगे और कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, क्रोशे बैग विद पॉकेट्स बनकर तैयार है। देखिए इसके पॉकेट्स है, इसका कवर है, वीविंग में है, ये इसका बटन है। बैक साइड से देखिए ये पॉकेट है, बटन, ये पॉकेट है, ये भी पॉकेट है और इधर भी ये पॉकेट है। ये फ्लैप आगे आएगा और ये फ्लैप इधर आएगा। ऐसे बैग दोनों तरफ से पैक हो जाएगा सामान डालने के बाद। बटन के बाद मैं इसकी पॉकेट्स आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये पॉकेट है, फर्स्ट, सेकंड, ये फ्लैप है, इसको खोलेंगे। एक और ये बड़ा पॉकेट है, ये पॉकेट काफी स्पेस वाला है और ये भी बाहर का पॉकेट है। अब इसमें मैं आपको सामान डाल के दिखाती हूँ। देखिए ये बड़े वाले में मैसेंजर पॉकेट है, ये मैसेंजर पॉकेट है ये। तो कई बार मैसेंजर जो है डाक लेके जाते हैं, जो लोग साइन नहीं कर सकते उसके लिए उनको स्टैम्प पैड रखना पड़ता है। ये स्टैम्प पैड इंक वाला उनके बैग में मैं डाल रही हूँ, उनके काफ़ी काम आता है। ये मैसेंजर का स्पेक्स है। पेन्स वो बाहर की पॉकेट में डाल सकते हैं। यहाँ तक कि अपनी बाइक की कीज भी यहाँ आ सकती है, चाबी, लेटर्स, जो उनको डिलीवरी करनी होती है। पत्र जो उनको पहुंचाने होते हैं टाइम से, यहाँ रख सकते हैं स्पेक्स के साथ। ये स्पेस है। यहाँ पर देखिए पार्सल होता है छोटा मोटा कोरियर का, तो वो उसमें
डाल के ले जा सकते हैं। ये यदि इससे बड़ा पार्सल है तो आपको पता है कि कोरियर मैन या पोस्टमैन सर्विस वाले, उनके पास बास्केट होती है रखने के लिए, तो बास्केट में भी रख सकते हैं। इसको यहाँ डाल देती हूँ, वहाँ थोड़ा सा टाइट हो रहा है इसलिए आगे वाले में डाल देती हूँ। इसमें सही से आ रहा है। देखिए ये बैग हमारा बन चुका है और इसको बटन लगा सकते हैं। व्यूअर्स देखिए यहाँ तो इनके पेन आ गए। एक पानी की बोतल भी वो अपनी रख सकते हैं रास्ते के लिए यदि आवश्यकता हो तो, वरना पानी तो हर जगह मिल ही जाता है। एक सेकेंड, बटन जो है फ्लैप का ये वाला था जो कि यहाँ आएगा। और दूसरे फ्लैप का बटन इस तरफ से इधर आएगा। ये थोड़ा इसलिए लंबा बनाया है। ये देखिए बिल्कुल ड्राफ्ट के हिसाब से बना है, जैसे इसका ड्राफ्ट था वैसे ही इसको बनाया गया है। आप भी बिल्कुल नाप के मेजरमेंट के अनुसार बनाएंगे तो आपका एक ही बार में बिल्कुल सही बनेगा। ये मेजरमेंट था, बिल्कुल सही बना है। अब देखिए ये तो है मैसेंजर बैग क्रोशे का विद पॉकेट्स, परंतु ज़रूरी नहीं है कि इनको मैसेंजर ही यूज़ करें। आप अपने घर में बच्चे के लिए, ट्यूशन के लिए, मार्केट, बैंक जाना हो तो इसको ले सकते हैं। और मैंने तो इसको बनाया क्योंकि हम जब कार में कहीं जाते हैं ना तो पीछे सीट के पास, बैक सीट पर इसको लगा लेते हैं। इसमें मेडिसिन, थोड़ा मोड़ा बिस्किट, खाने का सामान, वो सब आ सकता है। तो कैसा लगा आपको ये बैग? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही वीडियो लेके मैं आपके पास आती रहूँगी। कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और सजेशन भी दे सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। तब तक के लिए बाय। टिल देन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ये देखिए जब भी हम छोटे मोटे ट्रिप पर जाते हैं, मार्केट या कहीं भी, या हॉस्पिटल जाना हो, तो इस बैग को हम कार की बैक सीट पर लटका लेते हैं। और कितना अच्छा यूज़ है इसमें। हम जा रहे हैं और सैनिटाइज़र डाला है मैंने, और भी आइटम जो बहुत नेसेसिटी की होती हैं, पेपर सोप है, थोड़ी मेडिसिन्स हैं, छोटी वाटर बॉटल, आप कुछ भी उसमें डालकर ले जा सकते हैं। इजीली हैंडी होता है। टिश्यू पेपर भी रख सकते हैं। और छोटा बेबी है तो उसकी आप फीडर, वाटर बॉटल ये भी रख सकते हैं। मल्टी यूजेस हैं इसके और बहुत ही स्मार्ट लग रहा है कार में।